Hello students. So in today's session we are going to discuss about the topic delegation of authority under the chapter organizing. Okay. What is delegation? Basically जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि मैनेजर मैनेजेस द होल ऑर्गेनाइजेशन. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड मैनेजर इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. वो ये बात इंश्योर ही नहीं कर पा रहा कि सारा काम वो कर पाएगा. एंड एक्चुअली practically this is not possible also, and that's why a manager needs some subordinate. Fine. So whenever the volume of work makes it impracticable for a manager to handle it all the work by himself, and as a key consequence the manager desires to meet the organizational goal, focus on objectives, and the manager ensures that all work is accomplished, उसके पास एक ही ऑप्शन रहती है, delegate. He must delegate the work assigned to him. So हम क्या कह सकते हैं कि delegation is the downward transfer of authority from a superior to a subordinate. एंड इवन इफ एक तरफ ये जहाँ मैनेजर को सपोर्ट कर रहा है, साइड बाय साइड इट सैटिस्फाइज द सबॉर्डिनेट्स नीड फॉर रिकॉग्निशन. जब भी कोई मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को बोलेगा कि हमारा ये काम कर दो, बट ऑब्वियसली सबॉर्डिनेट विल फील मोर रिकग्नाइज्ड. आपको अगर कोई टीचर क्लास में खड़ा करके रिकग्नाइज कर दे कि ओके यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, आई नो यू कैन डू वेल, हाउ यू फील? You feel good na. In that manner every person needs some recognition in between the group that person exists, and side by side it helps manager to extend his areas of operation, because manager ने अब अपना काम जो है वो assign कर दिया. किस basis पे किया? उस subordinate की expertise की basis पर, और उस तरह से manager अपने काम को अब expand भी कर सकता है. थियो हैमन ने डिफाइन किया है दैट delegation of authority merely means the granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits. Means there are some prescribed limits. If a subordinate is assigned for some work, that subordinate has to work within these boundaries only. ऐसा नहीं है कि उसको इतनी अथॉरिटी मिल गई कि वो अपना डिसीजन सारे ले लेगा. डेलीगेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. बट हाँ, इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जितना भी उसे एडिक्वेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है वो उसे मिल जाएगी. तो हम क्या कहेंगे? डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. हम ये नहीं कह रहे कि मैनेजर उस काम को से जी चुरा रहा है. मैनेजर डू नॉट वांट टू डू दैट वर्क. मैनेजर हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड दैट्स व्हाई ही नीड्स सम सबऑर्डिनेट. So if manager assigns some work to subordinate just to recognize that person and to develop the feeling of recognition as well as the creation, the work can be accomplished with more creativity. Okay. So manager shall still be accountable for the performance of the assigned work. If this manager is assigning work to this subordinate, then ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई. नो, द मैनेजर शेल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क्स, बट द अथॉरिटी ग्रांटेड टू द सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड री डेलीगेट टू अनदर पर्सन. अगर उनको ये लगता है कि जिस पर्सन को उन्होंने डेलीगेट किया है दैट पर्सन इज़ नॉट फुलफिलिंग, नॉट डूइंग दैट वर्क विद दैट मच ऑफ एफिशिएंसी विच रिक्वायर्स to perform that work, the manager can take back the authority and then assign to the any other person. So ऐसा नहीं है कि manager is abdicating
the work. The manager is just assigning the work for the very short term period. This is not of permanent nature, this is just for a very short term period. Okay. So there are three major elements: authority, responsibility and accountability. So we will discuss about these one by one. This is authority, the right of an individual to command his subordinate and to take action. जिसको भी हमने काम डेलीगेट किया है उसको कुछ राइट्स दे देना, ठीक है. टॉप लेवल ने कुछ अथॉरिटी अपने जूनियर्स को दे दी, ठीक है. सो द राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन, टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू. अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ डिसीजंस जो कि ज़रूरी हैं लेने, ठीक है, वो डिसीजंस अगर एक काम को करने के लिए ज़रूरी हैं तो यू कैन टेक, बट ऑल द डिसीजंस आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस अथॉरिटी ऑलवेज ओरिजिनेट्स बाय द वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल्स पोजीशन. जिसकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको अथॉरिटी मिलती है. लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपनी अथॉरिटीज़ हैं, मिडिल लेवल की अपनी अथॉरिटीज़ हैं, लोअर लेवल की अपनी अथॉरिटीज़ हैं, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा लोअर लेवल को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है बाय गिविंग देम अ सर्टेन पोजीशन. सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क. आपको जब कोई टास्क को परफॉर्म करने का एक ऑब्लिगेशन है, मीन्स responsibility is directly associated with obligation and it always flows from lower to top, because a superior gives authority to the subordinate and subordinate will be responsible to his superior to perform the particular task which is assigned to them. So हमने जब authority और responsibility की बात की तो they both must be in a parallel. If you remember, हमने फ़ियोल के प्रिंसिपल्स में भी किया था ये कि the authority and responsibility must be proportionate. If authority will be more than responsibility, then the authority can be misused. And if authority is less than responsibility, it may make a person ineffective. हो सकता है आपने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी तो वो पर्सन इनफेक्टिव रहे. कैसे? हम आपके एग्जाम्पल लेके चलते हैं. आपको ममा ने कोई काम दिया और कुछ बाज़ार से सामान लाने को बोला. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि ये सामान लेकर आना है, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी कि किस शॉप से लाना है. आपको बोला उसी पर्टिकुलर शॉप पे और इतने की चीज़ मिले तो लाना. अब हुआ क्या, उस शॉप वो चीज़ नहीं थी या उस रेट पे नहीं थी, बट यू डोंट हैव अथॉरिटी टू गो टू एनी अदर शॉप. मीन्स यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू अथॉरिटी. तो आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, या तो आप घर वापस आ जाओगे या वहाँ से मम्मा को फ़ोन करोगे, फिर दूसरी दुकान पे जाओगे, मम्मा से परमिशन लेने के बाद फिर फ़ोन करोगे तो मम्मा फिर से डांट और खा लोगे. इतनी बार फ़ोन कर रहे हो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती. तो भाई अथॉरिटी तो दो, एटलीस्ट उतनी तो दो कि मैं चीज़ खरीद सकूँ. ऐसे ही अगर अथॉरिटी ज़्यादा मिल गई, मम्मा ने ये बोल दिया भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, अब तो कहीं से भी ला, कितने की भी ला. अब आपने क्या किया, अपने अथॉरिटी को मिसयूज़ किया. आप सीधा एक बिल्कुल हाई लेवल प्राइस शॉप पे गए और आपने फटाफट से वहाँ से ले ली. आपने मार्केट रिसर्च ही नहीं किया कि मुझे ये चीज़ कहाँ से कम पैसों में भी मिल सकती है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ ज़्यादा थी नहीं ना, अथॉरिटी ज़्यादा मिल गई. आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली कि आपको एक एडिक्वेट प्राइस पे भी चीज़ लेकर आनी है. तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपके पास जिस तरह से आपने अपनी अथॉरिटी को या तो मिसयूज़ किया या आपने अपना इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम नहीं कर पाए, द सेम लाइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. एक सबॉर्डिनेट को भी दोनों प्रोपोर्शनेट मैनर में चाहिए होती है. थर्ड इज़ अकाउंटेबिलिटी. मैंने आपको बताया कि अकाउंटेबिलिटी इज़ आंसरेबिलिटी. चाहे कोई भी सुपीरियर अपने काम को कितना ही नीचे देता चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की रहेगी. इफ़ दिस सुपीरियर डेलीगेट some work to them, but the final answerability lying with the superior. Even
if this is the subordinate, these are the subordinate, the accountability of this subordinate lying with the superior. This A is accountable to this superior, the B will be accountable to this superior, and this superior will be accountable to his superior. So it cannot be delegated. Answerability आप delegate नहीं कर सकते हो, and it always flows upwards. Subordinate is accountable to superior and superior is accountable to his superior. Okay? तो हम लोग nutshell में क्या कह सकते हैं, that authority is always delegated. Responsibility is assumed कि if I received this authority, then responsibility is mine. I must understand कि मुझे authority अगर मिली है, मुझे मम्मा ने अगर बोला है कि ये सामान लेकर आओ, तो I should be responsible ना, कि सही प्राइस पे लेके जाऊँ, गलत प्राइस पे नहीं लेके जाऊँ. And accountability is deliberately imposed. यहाँ पे accountability तो मम्मी की ही रहेगी, but you are accountable to your mama. So accountability is always imposed deliberately, it is given. तो हम क्या कह सकते हैं, that responsibility is derived from authority and accountability is derived from responsibility. तो हम कह सकते हैं that accountability is derived from responsibility and responsibility is derived from authority. Okay? Now these are the different points which shows the importance of delegation. Like through delegation there is effective management in the organization, because by empowering the employees, the managers are able to function more effectively as they get more time to concentrate on important matters, because now the superior is free from the routine work. उसने अपने routine work की जो भी काम है वो delegate कर दिए, and इसी वजह से आपके employees will get more developed, because as a delegation employees get more opportunities to utilize their talent, and this may give rise to latent abilities in them. जो भी उनकी latent abilities हैं वो rise होती हैं, उनको अपने skill को, complex task को perform करने का benefit मिलता है, मौका मिलता है, and by this way उनकी career development भी हो जाती है. The career will shape in a new way. So delegation empowers the employees by providing them with the chance to use their skill, the chance to gain experience and to develop themselves for the higher position. तो अब हम इससे कह सकते हैं कि they will get more motivated because उनको recognition मिल रही है, उनको recognition मिलेगी तो they will get more responsible and motivated, and it helps for the growth of the organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास फ्यूचर मैनेजर्स तैयार हो गए हैं, जब भी वो ग्रोथ करेंगे तो उनके पास अपने ही एम्प्लॉयज़ हैं, बिकॉज डेलीगेशन हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स. आपकी वर्कफोर्स तैयार होती जा रही है, जब भी आपको अपना ग्रो करना है आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए आपके पास एडिक्वेट मैन पावर है. फाइन, एंड इट प्रोवाइड्स बेसिस टू मैनेजमेंट हिरार्की. मैनेजमेंट हिरार्की को ये हमारी जो मैनेजमेंट हिरार्की है, तो अगर इसने इसको डेलीगेट किया, इसने इसको डेलीगेट किया, तो व्हेन एवर दिस पर्सन विल गो टू दिस पोजीशन, दिस पर्सन विल ईजीली अडॉप्ट दिस पोजीशन. तो हमारी जो मैनेजमेंट हिरार्की है, ये इस मैनेजमेंट हिरार्की पे अपर लेवल पे शिफ्ट होने में ईजी हो जाता है. एंड बिकॉज everybody is now doing work for all the superiors, they get to know that what are the problems our superior faced. हम जब आपको अगर टीचर खड़ा कर दे सामने पढ़ाने को, तो आपको समझ में आता है ना कि एक टीचर जब सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं और हम अगर नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा.
जब आप सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हो और आपकी क्लास का कोई बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप अपने टीचर की फीलिंग समझ पाते हो। अब आप क्या करोगे, जब आप वापस स्टूडेंट की पोजीशन पे जाओगे तो आप अपने टीचर के साथ कोऑपरेट करोगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप उनकी पोजीशन पे खड़े होते हो तो यू बिकम मोर एम्पैथेटिक। ओके, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ये हमारी एक मैनेजर हैं, मैम ने बोला कि मिस्टर एक्स कैन यू प्लीज़ प्रिपेयर ए पीपीटी फॉर मी। मिस्टर एक्स सेड ओके यस मैम, आई एम फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग पीपीटी। एंड ये बात मैनेजर को पता थी कि द मिस्टर एक्स इज़ डूइंग जॉब, बट मिस्टर एक्स को पीपीटीज बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना, उनमें डिफरेंट फीचर्स को डालना उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी इस क्रिएटिविटी को, उनकी इस एफिशिएंसी को देखते हुए उन्हें ये काम डेलीगेट किया और उन्होंने मिस वाई को बोला कि कैन यू कंपाइल दिस डेटा इन MIS फॉर्म, आई वांट। बिकॉज मैनेजर ये जानती थी बात कि जो हमारी मिस वाई हैं ये MS एक्सेल की जितने भी ट्रिक्स हैं, MS एक्सेल के जितने भी फार्मूलाज हैं, एंड शी इज़ एक्सेलिस्ट, ये बात मैनेजर जानती थी। तो मैनेजर ने कितना अच्छे से, कितने तरीके से इस काम को डेलीगेट किया टू दैट पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ डूइंग दैट वर्क। मिस्टर एक्स को उन्होंने बोला PPTs बनाने को और मिस वाई को उन्होंने बोला एक्सेल में MIS बनाने को। तो व्हाट इट शोज़, इट शोज़ द इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। इस मैनेजर ने इफ़ेक्टिवली काम किया, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या वर्क करा, एम्प्लॉयज़ के लिए ये मोटिवेशन का काम करके गया, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फाइन, सो बाय दिस वे द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन कैन बी हाईलाइटेड। चलो एक और एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। लाइक एक ऑफिशियल पार्टी है, उस ऑफिशियल पार्टी में बहुत सारे काम करने हैं, लाइक स्टेज डेकोरेशन करनी है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, लंच है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो मैनेजर ने क्या किया, हर एक काम के लिए, इस हर काम के लिए एक एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया। और अगेन उन्होंने मिस्टर जेड को ये बोला कि कैन यू प्रिपेयर अ मूवी फॉर ऑल द इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स हैपन इन द ईयर। उन्होंने कहा पूरे साल भर में, क्योंकि हमारा ये एनुअल फंक्शन है, तो पूरे साल भर की क्या जितने भी इवेंट्स, हमारी अचीवमेंट्स हैं, तुम उसको लेके एक वीडियो फिल्म बना सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, हर एम्प्लॉय को जिस काम में एफिशिएंसी थी, जिस काम में हर एम्प्लॉय को ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसको वही काम उन्होंने असाइन कर दिया, डेलीगेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बेटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि बच्चे आप लोगों के एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 70 to 80% पेपर केस स्टडीज़ बेस्ड आता है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट। इसी तरह से केस स्टडीज़ आती हैं और आपको बोलते हैं हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन in the above case study. So you must know how to deal with it. Now this is the one more case study. Like the manager, this manager is going to an official tour, and in the absence, suppose we can say the 1 week, and this 1 week the manager is going, and in the absence of this management, the manager assigns work to all the employees that in my absence which work is to be done by whom. Fine. So what points of importance is highlighted, like employee development, because employees will get more developed. It facilitates growth of the employees, and again it provides basis of management hierarchy. Fine, these are the points which are highlighted as the importance of
delegation. So students, although I will give you one different session for dealing with the case studies, but here I just give you an example about this topic. So I suppose you got all the points, and you can subscribe and share this channel and be connect with us to know more about that, how to deal with the question paper, how to utilize the time, examination time, 3 hours of examination time, how to utilize the 15 minutes of reading time, how to deal with the 6 marker questions, how to deal with the case studies. So be connect with us, and please share and subscribe the channel if it is useful for you, and in case of any query you can put your query in the comment box, or you can mail to me at rajshreetutorials@gmail.com. So thank you so much and good luck to all of you.